Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is relational operator in C language. Okay, let's see first what is operators. Operators are the special symbols used to perform mathematical and logical operations to the given operand. Okay, there are various types of operators in C language. Already जो operators वाली वीडियो है वो चैनल पर अपलोडेड है, वो आप लोगों को एक बार देख लेनी है. Okay, let's see. Relational operators are the operators used to create a relationship and compare the values of two operands. Okay, relational operators क्यों यूज करते हैं हम लोग? जो भी ऑपरेटर के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए या फिर जो भी दो ऑपरेंड है उनको आपस में कंपेयर करने के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर there are two numbers like 5 and 15 and we can get the greatest number using the greater than operator. Symbol देख लो, greater than operator. Okay, which returns 15 as the greatest or the larger number than the 5. Okay, 5 और 15 दो हम लोगों ने नंबर ले लिए हैं यहाँ पे. ओके, और ग्रेटर दैन ऑपरेटर हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यू रिटर्न होगी एज अ रिजल्ट वो 15 रिटर्न होगी. क्यों? बिकॉज 5 से जो 15 है वो ग्रेटर नंबर है. ओके, types of relational operators. First one was equal equals to checks if the value of two operands are equal or not. If yes, then the condition becomes true. अब a की वैल्यू 5 कंसिडर कर लो और b की 15. ओके, 5 इक्वल्स टू 15. अब ये ट्रू है क्या? दोनों इक्वल है क्या? नहीं है. सो इट इज नॉट ट्रू. Not equals to. Check if the value of two operand are equal or not. If the values are not equal, then the condition become true. A is not equals to B. 5 is not equals to 15. Okay, it's true. 5 15 के equal नहीं है. Then greater than. It checks if the value of left operand is greater than the value of right operand. If yes, then the condition become true. If a is greater than b, means if 5 is greater than 15, then it will show that it's true. Okay, but the value of a is 5 and b is 15, so a is not greater than b, so it is not true. Okay, then less than checks if the value of left operand is less than the value of right operand. If yes, then the condition become true. If a is less than b, then the condition is true. The value of a is 5 and the value of b is 15. 5 is less than 15. Okay, so it's true. Greater than equals to checks if the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand. If yes, then the condition becomes true. अगर a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर या फिर इक्वल है b से तो वो ट्रू रहेगा. अगर लेस है या फिर नॉट इक्वल है तो वो फॉल्स रहेगा. यहाँ पर देखो a इज 5 एंड b इज 15. 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15. नो, इट इज नॉट ट्रू. Okay, then less than equals to check if the value of left operand is less than or equal to the value of right operand. If yes, then the condition become true. Value of a is 5 and b is 15, means b is greater than the a is the less than the b. Okay, it is true. Let's see the example. Hash include stdio.h is our header file. मेन फंक्शन के अंदर इंट a इक्वल्स टू 21 एक वेरिएबल लिया a इंटीजर टाइप का, वैल्यू असाइन की 21. इंट b इक्वल्स टू 10 एक सेकेंड वेरिएबल लिया b, उसको वैल्यू असाइन की 10. इंटीजर c और एक वेरिएबल लिया हमने जिसमें a और b पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हम लोग c में स्टोर करेंगे. ओके, इफ a इक्वल्स टू b, a की वैल्यू 21 है, b की 10 है. अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग प्रिंट करेंगे कि a इज इक्वल टू b. ओके, एल्स अगर वो इक्वल नहीं है तो प्रिंट होगा कि a इज नॉट इक्वल्स टू b. अब यहाँ पे a की वैल्यू 21 है और b की 10 है, तो ये इक्वल है क्या? नहीं है, तो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी. यहाँ पर ये जो सेकेंड लाइन है इट इज़ नॉट इक्वल्स टू b, ये प्रिंट होगा. देन नेक्स्ट इज इफ a इज लेस देन b. ओके, a की वैल्यू 21 है और b की 10 है. ओके, अगर a लेस देन होता है b से तो a इज लेस देन b, बट अगर नहीं है
तो यहाँ पे प्रिंट होगा ए इज़ नॉट लेस देन बी। ए की वैल्यू 21 है और बी की 10 है, तो ए क्या है, ग्रेटर है बी से, तो यहाँ पे प्रिंट होगा ए इज़ नॉट लेस देन बी। ओके, देन नेक्स्ट इज इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब ए तो बी से ग्रेटर है क्योंकि ए की वैल्यू 21 है और बी की 10 है, तो यहाँ पर प्रिंट होगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, और ये जो एल्स वाला पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। देन लेट्स चेंज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी नाउ। ए इक्वल्स टू 5 एंड बी इक्वल्स टू 20। इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी। अब ए जो है वो बी से छोटा या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ए जो है वो 5 है, मीन्स बी से छोटा है, इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, ए इज़ एदर लेस देन और इक्वल्स टू बी। ओके, देन नेक्स्ट इज बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अब बी की वैल्यू 20 है, वो ग्रेटर देन ए है। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट होगा बी इज़ एदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, और हम लोग करली फ्रेज से एंड करेंगे। यहाँ पर आउटपुट देख लो, पहले इसमें मैंने बोला था ए और बी दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 21 है और बी की 10। ए इज़ नॉट लेस देन बी क्योंकि ए की वैल्यू जो है ग्रेटर है, 21 है, और ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर है क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 21 है और बी की 10 थी। ए इज़ एदर लेस देन और इक्वल्स टू बी। यहाँ पर हम लोगों ने ए की वैल्यू 5 की थी और बी की 20, और यहाँ पर लास्ट लाइन में बी इज़ एदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे यूज़ करते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का। ओके, सारे ऑपरेटर्स आप लोगों ने अच्छे से देखने हैं, और हमने इसमें रिलेशनल ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर्स देखे हैं। इक्वल इक्वल्स टू था, ओके, ग्रेटर देन था, इक्वल टू था, और उसके बाद में लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू, ये सारे ऑपरेटर आप लोगों ने अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, उसके बाद में आप लोगों को अरिथमेटिक वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो भी देख लेनी है, और ऑपरेटर्स और यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स वाली वीडियो भी देखनी है, तो आपके जो ऑपरेटर्स है वो लाइन बाय लाइन अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब फॉर मोर।